Yeah. So we can start today's session, sir. Okay, okay. So, hello everyone. Good evening. I, Nikita Jangit, welcome all my viewers and our today's speaker, Ashish Chaudhary, sir, and on behalf of Shashi Dream Foundation. So today's session topic is how to crack banking and other competitive exams. And we are really glad to have Mr. Ashish Chaudhary, sir, with us. He's a digital banking top performer. So let's begin with the session, sir. So my first question to this is, so can you brief about your journey till now? Okay. So, my name is Ashish Chaudhary, and I am very thankful for inviting me, Harshal Dhokeji, Shashi Dream Foundation. So first of all, I'll introduce little bit about myself. I am Ashish Chaudhary. I am from Gadchirli, near Chandrapur district. Presently, I am working in Mumbai, in Bank of Baroda as a business associate. I joined bank in 2014. Okay, sir. Before that, I did self preparation. I joined Mahindra banking coaching classes. I have cracked other different exams like SSC, other banks also. So this is a little bit about me. Okay, sir. So what are the different exams in banking? Okay. So in banking sector, IBPS is body. Institutional of Banking Personal Selection is body. They conducted every year exams like IBPS clerical exam, IBPS probationary officer exam, then IBPS specialist officer exam, then regional rural banks exam. So 4 types of exams IBPS conducted every year. Okay, sir. Sir, do we have same syllabus for all? Yeah, it varies exam to exam. Okay. Pardon, madam? Sir, do we have same syllabus for all the exams, or it varies No, according to yeah, exams? same, but for a specialist officer, there is a different streams candidates like marketing candidates, HR related candidates, and in RRB regional rural banks मतलब वहाँ पे थोड़ा different syllabus होता है, जैसे कि जनरल नॉलेज वगैरह वहाँ पे पूछा जाता है, रूरल एरियाज रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस वगैरह वहाँ पे पूछे जाते हैं. आईबीपीएस क्लैरिकल एंड जो पीओ का जो सिलेबस होता है, क्लैरिकल का थोड़ा इजी सिलेबस होता है, देन जो पीओ का सिलेबस है वो थोड़ा एज कम्पेयर टू क्लैरिकल थोड़ा हाई लेवल का होता है. डिफिकल्ट सबसे ज्यादा कौन सा होता है एग्जाम बैंकिंग सेक्टर में? क्या बोले सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम कौन सा होता है, टफेस्ट एग्जाम सर? आरबीआई की जो ग्रेड बी होती है, बैंकिंग अगर सेक्टर की डिफिकल्ट अगर एग्जाम है तो आरबीआई की जो ग्रेड बी की जो एग्जाम होती है वो थोड़े डिफिकल्ट होती है सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू पीओ एंड अदर बैंकिंग एग्जाम्स. Okay. Sir, do we need to clear any sort of interview? मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू हमें क्या करना पड़ता है? Yes, for clerical post there is no any interview. You have to crack only pre-exams and mains exam. And for a specialist officer, PO and RBI grade B, there is a interview session. So we have to give interview. But important thing is we have to crack more marks in pre and mains exams. Okay, sir. We have to score. Okay, sir. So best source of banking preparation. Okay. देखिए बेस्ट अगर सोर्स है सेल्फ स्टडी इज वेरी गुड, बट इफ यू कैन ज्वाइन इफ पॉसिबल, आप अगर कोई जो मार्केट में कोचिंग क्लासेस वगैरह है लाइक महिंद्रा बैंकिंग, बैंकर्स अड्डा, वो भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या है आपका जो पासिंग रेशियो बोल सकते हैं या जो ज्वाइनिंग का रेशियो है वो थोड़ा ज्यादा होता है. क्या होता है कि जैसे हम सेल्फ प्रिपरेशन करते तो आउट ऑफ 100 अगर हम 60 मार्क्स लेते हैं तो विद द हेल्प ऑफ कोचिंग वी कैन अर्न और गेन मोर मार्क्स लाइक 70-75. तो थोड़ा बहुत मतलब डेफिनेटली फायदा तो हो ही जाता है कोचिंग लगाने से. So, is it necessary to join a coaching? हम खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते? यस कर सकते हैं, बट क्या होता है मैडम जी, अगर हम ज्वाइन करते हैं कुछ कोर्सेस क्लासेस तो क्या है थोड़ा हमारा ग्रुप हम ज्वाइन कर सकते हैं. सपोज कुछ टॉपिक या सेक्शन हमको नहीं आता है जैसे कि मैथ रीजनिंग है ना,
हर कोई पर्सन तो ऑलराउंडर होते हैं, तो हम क्या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं उसमें। देन मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, लाइब्रेरी भी वहाँ पे कोचिंग में होती है। तो ये क्या है, फैसिलिटी हमको सेल्फ प्रिपरेशन जब करते हैं हम, ये नहीं मिलती है। तो ये एक एडवांटेज सेल्फ क्लासेस लगाने का होता है। ओके, तो मतलब हाउ मच ड्यूरेशन वी नीडेड फॉर प्रिपरेशन? ओके, सपोज आज की डेट है 2 जून 2020। अगर आज से ही कोई मान के चलो किसी का ग्रेजुएशन हुआ है या कोई फ्रेशर कैंडिडेट से, तो मैक्सिमम 1.5 ईयर मतलब लग जाता है बैंकिंग की कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज हमको डेली प्रिपरेशन करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही मतलब कंपलसरी है। डेली जैसे कि इसमें सिलेबस होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो डेली हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। तब जाके हमारी जो स्टडी है हाई लेवल, पीक लेवल पे जाएंगी। देन जो अदर टॉपिक है जैसे कि करंट अफेयर्स एंड जो बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह है, ये हम वंस इन ट्वाइस, एक दो बार भी वीक में से हम पढ़ाई करेंगे तो सफिशिएंट है। बट मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश ये डेली हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये अगर हम रेगुलर करेंगे तो विद इन अ ईयर हम ज्वाइन कर सकते हैं बैंक। तो मतलब मैक्सिमम एक या 1.5 साल चाहिए प्रिपरेशन के लिए? ट्राई करेंगे तो 1-1.5 साल में हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो डू वी नीड एनी एक्स्ट्रा स्किल्स फॉर ज्वाइनिंग बैंकिंग और अदर एसएससी एग्जाम्स? कोई एक्स्ट्रा स्किल्स की जरूरत है? हमारे यहाँ पे एग्जाम में सिलेबस होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये तो हम क्रैक कर लेंगे। बट कोई कोई एग्जाम्स में इंटरव्यू वगैरह होती है, तो इंटरव्यू के लिए वी हैव टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल, लाइक वी हैव टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। अगर नहीं भी आती है तो हम जो अदर ये है, जैसा कि हम इंटरव्यू में जाते हैं तो ड्रेसिंग वगैरह होता है, हम कैसे बात करते हैं, हमारा बिहेवियर, नेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक्स्ट्रा ये चीजें होना चाहिए, बाकी तो कोई नथिंग एल्स, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। अच्छे मार्क्स भी अगर आते हैं तो इंटरव्यू भी थोड़ा अगर अच्छी भी नहीं जाती है तो वी कैन सिलेक्ट। ओके, सो व्हिच इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू जॉइन फॉर देखिए, प्रिपरेशन? हाँ ओके, मेरा अगर एक्सपीरियंस अगर लेते तो मैंने महिंद्रा बैंकिंग, आपने नाम सुना होगा, ये मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। ये 2000 आई थिंक 12-13 की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 6 ईयर हो गए ना मैंने ज्वाइन किया। तब महिंद्रा बैंकिंग अच्छा इंस्टीट्यूट है। आज भी मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, एंड एज वेल एज ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल वगैरह है, वहां पे भी हम कोचिंग वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी बैंकर्स अड्डा है, महिंद्रास बैंकिंग है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप एक दो फॉलो कर सकते हैं। So what is the most important strategy to follow in exam for preparation of competition exams from नॉन your बैंकिंग point of एनी। view? Yes Okay, sir, so for all. तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा जो गोल। हमको जैसा हमारा एजुकेशन किसी का होता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स, साइंस बैकग्राउंड का होता है, या इंजीनियरिंग का होता है, तो जैसे हमारा ग्रेजुएशन हो जाता है हमको ये सोचना है कि हमको क्या बनना है। तो जो भी हमारा एम या जो गोल है वो पहले हमको डिसाइड करना है। जैसे कि बैंकिंग की अगर हमने सोचा है तो वही मतलब क्या, मतलब उसका जो डेटा है, क्या मटेरियल है, वो मतलब प्रॉपर कैसे ज्वाइन करते, पूरी मतलब प्लानिंग हमारी होना चाहिए। देन जैसे प्लानिंग करते हैं, एक्शन मतलब हमको वही एक्शन मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल स्टडी करना है, स्टडी करना है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना है। देन यही करने के बाद तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज डेडिकेशन। डेली हमको यहाँ पे पढ़ाई करना है, जो भी हमारा टाइम है मैनेज करना है, प्रॉपर शेड्यूल बनाना है। जो भी थोड़े हमारे फैमिली में कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, पार्टीज वगैरह होते हैं, तो इनसे थोड़ा 1-2 साल तो दूर ही रहना है। तो ये सब अगर बातें हम करेंगे तो डेफिनेटली वी कैन क्रैक एनी एग्जाम। सेल्फ डेडिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So how to tackle this distraction and negativity during preparation? ओके यस, ये तो हर किसी के साथ होता है। जैसे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं या कोई प्लानिंग करते हैं प्रिपरेशन, तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल होते हैं, फैमिली मेंबर्स भी होते हैं। जैसे घर में अगर पढ़ाई करते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसलिए मैं बेस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा कि लाइब्रेरी ज्वाइन करना यहाँ पे बहुत अच्छा है। क्योंकि हम जब लाइब्रेरी या स्टडी सर्कल में जाते हैं तो वहाँ पे क्या स्टडी वाले ही लड़के होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये हमारा एक एडवांटेज होता है। और कभी कभी ये भी होता है कि जैसे हम कोई एग्जाम फेल होते हैं या अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो हमारे इसमें क्या डिमोटिवेशन पर्सन हो जाते हैं या निगेटिविटी आती है। तो इसके लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब में वगैरह वीडियोस है मोटिवेशनल रिलेटेड, तो वो भी हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स है कि
टेंथ में 12th में फेल होने के बावजूद भी आज अच्छे मुकाम पे अच्छे ऑफिसर बने हैं। तो ये हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। एंड एटलीस्ट वंस इन अ डे, एक दो डेली मोटिवेशन के जो वीडियोस वगैरह होते हैं वो हमको यहाँ पे देखना चाहिए। जो पर्सन है, सक्सेस स्टोरी वगैरह है, ये हम देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाता है। एंड इम्पोर्टेंट, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे मॉर्निंग में वेकअप करते तो 5 या 10 मिनट का जो मेडिटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर स्टडीज, जो हमारी डेली लाइफ है इसके लिए भी जो मोटिवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिन जो हमारा एकदम बेस्ट मतलब यहाँ पे चला जाता है। तो ये छोटी मोटी चीजें अगर हम फॉलो करते हैं तो कोई मतलब यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन या निगेटिविटी मेरे ख्याल से तो नहीं आएगी। Okay, sir. So, what was your motivation in this whole journey? ओके, देखिए मैंने तो जैसा मेरा ग्रेजुएशन हुआ था बीकॉम, तो मैंने तो ये सोचा था कि हमारे तब मेरी दैट टाइम आई वाज 22-23 इयर्स ओल्ड। तो मैंने ये सोचा था कि चलो हमारा ग्रेजुएशन हुआ है, देन मैंने एमकॉम वगैरह किया। तो दैट टाइम आई वाज थिंकिंग, मैंने डिसाइडेड किया था कि चलो हम व्हाई नॉट कि मतलब गवर्नमेंट कोई एग्जाम है जैसे कि बैंकिंग एग्जाम से, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की मतलब प्रयास किया। तो ये मैंने सोचा कि 1 या 2 साल में अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो जो आने वाले 60 साल तक है, 60 साल तक का है, हम अच्छे से लग्जरियस लाइफ वगैरह यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो इसमें मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल वगैरह है, उन्होंने अच्छा खासा मुझे साथ दिया, मुझे गाइड किया है, जो मेरे वीक पॉइंट्स वगैरह थे तो अच्छा मतलब मोटिवेशन मुझे किया है। देन मैंने कुछ बुक्स वगैरह जो होती है, एपीजे अब्दुल कलाम सर की बुक्स पढ़ी है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की भी कुछ मतलब नॉलेज, मतलब उनके जो थॉट्स वगैरह है वो एक पॉजिटिविटी मतलब उसमें आया है। क्योंकि आम्बेडकर सर को तो मतलब सब ही जानते हैं क्योंकि वो कैसे स्टडी करते हैं, कितनी डिग्रीज उन्होंने लिया था। तो ये मतलब थोड़ा मोटिवेशन इनके थ्रू मुझे मिला है। Okay, sir. So, can you brief about SSC CGL? Okay, SSC CGL, this is a central government's exam. Every year SSC conducted a CGL exam. तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम ग्रेजुएशन है। अगर किसी का अगर बीए, बीकॉम, बीएससी कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन है तो वी कैन अपीयर फॉर एसएससी सीजीएल एग्जाम। तो इसमें अलग अलग पोस्ट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर, कारपोरेट ऑफिस में, देन बहुत सारे मतलब जो नॉट रेलवे, जो अदर गवर्नमेंट के जो बैक ऑफिस वगैरह होते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें टोटल डिपेंड करता है 3 to 4 टीयर्स होते हैं, जैसे Tier 1 एग्जाम, इन अदर वर्ड वी कैन से प्री एग्जाम्स। देन आफ्टर क्रैकिंग Tier 1 एग्जाम, Tier 2 एग्जाम होती है। देन यहाँ पे जैसे कि इंटरव्यू वगैरह हो सकते हैं, डिपेंड ऑन यहाँ पे अलग अलग मतलब पोस्ट है। कोई प्रैक्टिकल कंप्यूटर रिलेटेड टाइपिंग भी हमको यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छी एग्जाम है, हाईएस्ट पेइंग जॉब जिसको हम गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो एसएससी सीजीएल सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो सैलरी पैकेज भी अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू बैंकिंग एग्जाम। तो ये भी हम एग्जाम दे सकते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें भी ग्रेजुएट। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। बैंकिंग में जैसा हमको बैंकिंग करंट अफेयर्स जैसा इंग्लिश होता है, मैथ, रीजनिंग होता है, इसमें भी होता है, बट इसमें थोड़ा जनरल नॉलेज यहाँ पे एग्जाम में वास्ट पूछा जाता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी। इसमें मैथ जो होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह होता है। देन पॉलिटिकल रिलेटेड भी यहाँ पे अलग अलग जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल की जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। Okay, sir. So, do candidates need to give all 3 tiers in level? मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लियर करने के बाद थर्ड भी देना जरूरी है एसएससी सीजीएल में? वहाँ पे एसएससी सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं। तो कोई पोस्ट में क्या है, इंटरव्यू होती है, कोई पोस्ट में जैसे हमारे अच्छे मार्क्स है तो मेरिट के आधार पे हमारा यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। टेस्ट भी होते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्टेनो की कोई एग्जाम देते हैं, टाइपिंग की, कंप्यूटर की कोई एग्जाम देते हैं, तो वो भी हमको आफ्टर पासिंग Tier 2 एग्जाम वो हमको वहाँ पे देना पड़ता है। देन फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। Okay, sir. So, is there any category division in SSC CGL? कैटेगरी मीन्स व्हाट? सर जैसे ओबीसी और जनरल इन सब की कट ऑफ? तो इसमें हाँ कट ऑफ तो एसएससी सीजीएल का थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो डिक्लेयर नहीं करते। जैसे हम बैंक में देखते तो वहां पे सेक्शनल कट ऑफ होता है, जैसे कि मैथ का अलग होता है, अलग से मतलब पास होना पड़ता है कैंडिडेट्स को, मैथ, इंग्लिश, जीए में। तो इसका वो डिक्लेयर थोड़ा नहीं करते एसएससी का। बट ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूंगा कि 100 अगर मार्क्स है तो सभी सेक्शन में हम ये ट्राई करना चाहिए कि अच्छे
सेक्शनल कट ऑफ हो या अच्छा अगर मार्क्स वगैरह लेते तो ये हमको यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। एंड आपने जैसे बोला कि हाँ कास्ट वाइज तो थोड़ा कट ऑफ कम ज्यादा होता है, जैसे कि ओबीसी ओपन का है तो थोड़ा ज्यादा हो सकता है, एससी एसटी कैटेगरी का है तो उनका भी थोड़ा कम हो सकता है। बट कैंडिडेट्स कोई भी एग्जाम में कितने अपीयर होते हैं इसके अकॉर्डिंग भी वो कट ऑफ ये होता है। कभी कभी एससी वालों का भी ज्यादा कट ऑफ होता है, ओबीसी ओपन वालों का भी कम होता है, देन फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। Okay, sir. So minimum, how many mocks do we need to give फॉर विच एग्जाम? for banking and SSC, CGL both? के लिए देखिए एटलीस्ट मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि थ्राइस इन अ वीक में अगर 3 बार भी हम टेस्ट देते हैं मॉक टेस्ट तो वो एक बेटर होता है। देन जैसे मतलब रेगुलर बेसिस पे देन जैसे एग्जाम अगर नियर आती है तो थोड़ा हम ये नंबर बढ़ा सकते हैं, जैसे कि डेली भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब 7 दिन टोटल अगर है तो क्या है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस होंगी। बिकॉज एग्जाम में क्या होता है बहुत बार हमको क्वेश्चन तो आ जाते हैं, आंसर आ जाते हैं, बट टाइम कम होने की वजह से हम वो सॉल्व नहीं कर पाते, तो उसके वजह से हमारे किसी के 2 मार्क्स 5 मार्क्स से वो हम यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो ये डेडिकेशन से अगर हम 3-4 बार भी एग्जाम अगर देते हैं तो मतलब मॉक टेस्ट देते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा। Okay, sir. Sir, which public sector bank is best? ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ बैंक बट अभी रिसेंटली कि मर्ज हो गया, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ देना विजय बैंक हो गया, यूनियन बैंक भी एक है। तो मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वहां पे डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन में प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन बैंक ऑफ बड़ौदा, तो यहाँ पे जो प्रमोशन की पॉलिसीज है तो वो बहुत अच्छी है। अगर आप क्लैरिकल में भी ज्वाइन करते हैं तो 2 साल में आपका यहाँ पे पीओ मतलब स्केल 1 में प्रमोशन हो जाता है, देन हर 2 साल में यहाँ पे स्केल 2 स्केल 3 स्केल 4 ऐसा मतलब फास्ट यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जैसे होम ट्रांसफर के यहाँ पे थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको प्रमोशन चाहिए कि होम ट्रांसफर चाहिए, मतलब नेटिव प्लेस में आपको ज्वाइनिंग चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप पब्लिक सेक्टर ज्वाइन कर सकते हैं। देन यूनियन बैंक की हम बात करें तो यूनियन बैंक का जो एचआर का जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा है। अगर आप ज्वाइन करते तो डेफिनेटली 2-3 साल में आपको कोई भी पोस्ट में हो, चाहे आप क्लैरिकल पोस्ट में हो या अगर पीओ पोस्ट में भी हो, तो 2-3 साल में तो आपको होम टाउन इसमें मिल जाता है। तो ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है। अगर प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज वेरी वेल बैंक, एंड बाकी आपको होम ट्रांसफर वगैरह चाहिए तो यूनियन बैंक है, देन पीएनबी है, इंडियन बैंक भी अच्छी है, देन पर्क्स थोड़ा सैलरी में भी डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है। तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा इज फॉर प्रमोशन बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। The Bank of Baroda is best among all these. Yes, if you want promotion, then very good bank. Sir, there is a question from our viewer कि सारे सब्जेक्ट कैसे टाइमली मैनेज करें? For which exam? Sir, banking. Banking exam. Okay. बैंकिंग में अभी यहाँ पे करंट अफेयर विद स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री होता है, मैथ क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, देन कंप्यूटर वगैरह होता है। तो देखिए आपको इम्पोर्टेंट थिंग है डेली रोज मतलब इंग्लिश रीजनिंग एंड मैथ ये तो डेली प्रैक्टिस करना है। जैसा हम यहाँ पे रोज खाना खाते हैं तो वैसा ये अगर प्रैक्टिस करना है। अगर एक भी दिन आपने प्रैक्टिस मिस किया तो समझ जाओ कि बहुत ही मतलब स्टडी क्या है, मतलब हम लॉस भी कर सकते हैं, स्टडी का मतलब थोड़ा आगे जाके दिक्कत हो सकती है। तो ये मतलब इंग्लिश रीजनिंग और मैथ तो ये डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। आप इंग्लिश के लिए चाहे तो न्यूज़पेपर भी इकोनॉमिक टाइम्स है, द हिंदू है, बहुत सारे न्यूज़पेपर है वो आप लगा सकते हो। देन मैथ के लिए जैसा हमारी स्टडी रूम वगैरह होती है तो जो टेबल का स्टिकर है, क्यूब रूट है, स्क्वायर है, ये आप यहाँ पे ये कर सकते हो। एंड अप टू 30 तक तो आपको टेबल वगैरह आना ही चाहिए। रीजनिंग की वगैरह है तो ये डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी पेपर सेट है आप चाहे तो जैसे इनिशियल स्टेज पे स्टार्टिंग में आप देख के जो सॉल्यूशन है सॉल्व करो, क्वेश्चन आंसर आप देख के सॉल्व करो, देन आपको क्या धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आता जाएगा। तो ये बस यही चीज है, प्रैक्टिस 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 करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको ये फायदा हो जाएगा। देन जो अदर सब्जेक्ट है हमारे कंप्यूटर बोलो, करंट अफेयर बोलो या जनरल नॉलेज बोलो, इसके क्या है जो मैगजीन्स वगैरह आती है, बीएससी मैगजीन है, बहुत सारी अदर दूसरी भी मैगजीन हो सकती है, बट मैंने बीएससी मैगजीन फॉलो किया क्योंकि इसमें जो
अपकमिंग एग्जाम्स वगैरह होते हैं इसका अच्छे से सिलेबस वगैरह दिया रहता है, टेस्ट वगैरह दिया रहता है, करंट क्या टॉपिक्स है वो दिया है, महेंद्रस की भी मैगजीन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप मतलब फॉलो कर सकते हो। बट इम्पोर्टेंट थिंग इज डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इससे क्या है, हमारा जो बेस है थोड़ा इम्प्रूव होते जाएगा। Okay, sir. So, will you prefer any newspaper ओके, or टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, देन द हिंदू बेस्ट है। वहां पे जो एडिटोरियल कॉलम आता है ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर इंग्लिश हम डिक्शनरी जो होती है, डिक्शनरी आजकल तो मोबाइल में एप्स वगैरह है बहुत सारे, या जो पॉकेट डिक्शनरी हम यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर 5 वर्ड भी हम सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, ये अगर डेली नया सीखते तो इन अ मंथ 150 न्यू वर्ड्स हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यही एग्जाम में आता है, बाकी नथिंग एल्स, ऐसा कुछ बाहर से तो कुछ एग्जाम में नहीं आता है। यही अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली जो फाइनल एग्जाम होती है उसमें हमको यहाँ पे फायदा होने वाला है। okay, sir. So, what is the recruitment process in banking sector? ओके देखिए, बैंकिंग की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सपोज आज हमने एग्जाम दिया तो विद इन 6 मंथ ये प्रोसेस हो जाता है। एवरी ईयर जो आईबीपीएस होती है वो रिक्रूटमेंट का नोटिस रिलीज करता है। अभी तो ये थोड़ा लॉकडाउन की वजह से आई थिंक थोड़ा डिले हो सकता है। तो इसमें जो क्लैरिकल है, आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस आरआरबी, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो इनकी यहाँ पे अलग अलग एग्जाम होती है। फर्स्ट मेरे ख्याल से क्लैरिकल की होती है, देन आरआरबी, पीओ। तो यहाँ पे हम क्लैरिकल की अगर बात करते तो फर्स्ट प्री एग्जाम्स होती है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक बार एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये बताना चाहता हूँ। तो जो आईबीपीएस की जो सभी एग्जाम्स होती है क्लैरिकल एंड पीओ की, तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम ग्रेजुएशन आपका यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम के हो, बीए, बीकॉम, बीएससी या इंजीनियरिंग भी किया है, तो मिनिमम 35% भी अगर आपके मार्क्स है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम्स। आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका फर्स्ट क्लास ही होना चाहिए, आपका बीकॉम ही होना चाहिए। तो ऐसा देयर इज नो सच क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, क्लैरिकल, पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आईबीपीएस, उनके वेबसाइट है www.ibps.in। ये वेबसाइट पे वो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज करता है। जैसे रिलीज हो जाता है वहां पे एप्लीकेशन ऑनलाइन, मतलब जो स्टार्ट डेट होती है और एंड डेट होती है, आई थिंक 10 या 15 दिन का कुछ ड्यूरेशन होता है। तो वो डेट के बिटवीन आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देन जैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपकी हॉल टिकट वगैरह मतलब वो पूरा रिक्रूटमेंट के जो नोटिस में पूरा शेड्यूल वहां पे दिया रहता है। तो आफ्टर अप्लाइंग आपका हॉल टिकट जनरेट हो जाता है। देन जो भी आपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे एग्जाम देना पड़ता है। फर्स्ट वहां पे प्री एग्जाम्स होती है, सभी आईबीपीएस की जो एग्जाम्स है प्री एग्जाम, देन वहां पे आफ्टर क्रैकिंग प्री एग्जाम्स मेंस एग्जाम्स होती है। देन जैसे क्लैरिकल की अगर हम बात करें तो वहां पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। अगर आप प्री एग्जाम्स क्रैक करते हो, मेंस एग्जाम क्रैक करते हो तो इंटरव्यू नहीं होता है, मेरिट के आधार पे आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है। देन जो पीओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो एग्जाम है, वहां पे प्री एंड मेंस क्रैक करने के बाद इंटरव्यू, जीडीपीआई भी होता है। देन फाइनल मतलब सिलेक्शन हो जाता है। तो ये टोटल प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा 5 to 6 मंथ यहाँ पे लगते हैं। okay, sir. Sir, our viewer is asking कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक्स में सैलरी सेम होती है क्या? सेम, मोर और लेस सेम? डिपेंड करता है। जैसे कि गवर्नमेंट के क्लैरिकल की अगर हम बात करें, आईबीपीएस या पब्लिक सेक्टर बैंक या स्टेट बैंक की भी अगर बात करें, तो स्टार्टिंग में जो सैलरी होती है अराउंड 30,000 होती है। देन जो थोड़ा बहुत अलाउंसेस वगैरह है वो मिलता है। देन अगर पीओ की अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट बैंक में, तो अराउंड 40 to 50,000 स्टार्टिंग यहाँ पे सैलरी होती है। बट प्राइवेट बैंक का यहाँ पे क्या है, उसमें अलग अलग पोस्ट है। एंड प्राइवेट बैंक में थोड़ा क्या है, टारगेट्स वगैरह होते हैं, तो डिपेंड ऑन परफॉर्मेंस वो सैलरी मतलब वो डिसाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई कोई पोस्ट में प्राइवेट में थोड़ी भी हो सकती है, देन थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। अगर आप टारगेट अच्छा करोड़ों का बिजनेस भी लाते हैं तो दे कैन मतलब वो प्रमोट भी करते हैं। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब ये डिफरेंस है दोनों में। मतलब सिंपल है कि पब्लिक सेक्टर बैंक या गवर्नमेंट बैंक में फिक्स होती है सैलरी, प्राइवेट में ऐसी कोई फिक्स नहीं होती है। थोड़ा कम भी मिल सकता है या ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन आवर परफॉर्मेंस। Okay, sir. Okay. So, what is the promotional criteria in this banking sector? तो देखिए, इफ यू ज्वाइन क्लर्क, अगर ज्वाइन करते हो आप, तो
बैंक के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी होते हैं, आपका कैसा परफॉर्मेंस होता है। इसमें JAIIB एंड CAIIB की एग्जाम्स होती है, देन अदर भी कोई बैंक की डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है। तो जैसे अगर आज मान के चलो कोई क्लर्क व्यक्ति ज्वाइन करता है जून 2020 में, तो मैंने पहले ही बोला था कि हर बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का 2 साल का क्राइटेरिया है, अदर बैंक का हो सकता है 3 साल का भी हो सकता है। तो हम क्या है फिर इलिजिबल होते हैं। कोई कोई बैंक में क्या है, अगर JIB CIB हमारे डिपार्टमेंटल कोर्सेस हो गए, तो जो प्रमोशन में क्या है, अपना जो क्या बोलते हैं एक प्रोफाइल है, अच्छा वेटेज प्रोफाइल हो जाता है, तो उसके आधार पे हम सिंपल, और जो प्रमोशन की जो एग्जाम होती है सिंपल होती है, जो हमारा करंट अफेयर, इंग्लिश, नॉर्मल जो टॉपिक है वही होता है। तो हम मतलब 2-3 साल में यहाँ पे प्रमोशन कर सकते हैं। क्लैरिकल टू PO के लिए नॉर्मली 2 से 3 साल लगते हैं। वैसे ही सेम PO मतलब स्केल 1 टू स्केल 2 भी करना है तो नॉर्मली 2 साल लगते हैं। वो इसमें भी पब्लिक सेक्टर बैंक में थोड़ा अलग अलग इसमें क्राइटेरिया, किसी का परफॉर्मेंस, अगर हम बिजनेस भी लाते हैं, आजकल क्या है पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, तो क्या है थोड़ा मार्केटिंग थोड़ा बढ़ गया है, क्रॉस सेलिंग जो बोलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह भी सेल करना पड़ता है। तो ये भी बातों का ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रमोशन मिल जाता है। तो बेसिकली डिपार्टमेंटल वाइज प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं। दिस इज क्राइटेरिया। ओके, सो बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर बैंक प्रिपरेशन। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैगजीन आप कोई भी एक यहाँ पे ले सकते हैं मंथली बेसिस पे, क्योंकि कोई भी अगर आप हम एग्जाम देते तो जो करंट अफेयर्स है, GA आता है, वो लास्ट 6 मंथ का ही आता है, तो वो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। देन न्यूज़पेपर तो मैंने ऑलरेडी बोला है, आप इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, ये तो कंपलसरी है, मतलब ये तो आप लगा ही लीजिए। देन हमारा जो टॉपिक या सेक्शंस होते हैं, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर या कंप्यूटर जो टॉपिक्स होते हैं, तो इसके लिए रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना चाहिए। देन जो BSc की मैगजीन मैंने सजेस्ट किया था वो आप यहाँ पे ले सकते हो। देन लास्ट प्रीवियस पेपर्स भी होते हैं, तो उनकी एक बड़ी बुक्स भी मिलती है, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। देन यहाँ पे स्पीड टेस्ट तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स अभी तो ऑनलाइन होते हैं, तो स्पीड टेस्ट आप यहाँ पे कोई भी लगा सकते हो, जैसे कि 500, 1000 के यहाँ पे स्पीड टेस्ट आपको मिलते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। देन बहुत सारे आजकल यूट्यूब चैनल्स वगैरह है, वहाँ पे डेली क्लासेस भी होती है फ्री ऑफ कास्ट, आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ता है, तो वो भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ डेडिकेशन से आप ये प्रिपरेशन करते हो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यही मतलब जो आजकल का ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, मंथली मैगजीन भी अगर हम फॉलो करते हैं, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जो डायरी वगैरह कुछ होती है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए, इंग्लिश के लिए बोल सकते हैं हम, या जनरल नॉलेज के लिए बोल सकते हैं, तो वो भी आप फॉलो कीजिए। बस बाकी तो यही मटेरियल इनफ है। Okay, sir. Sir, there is a question from our viewer. Okay. LIC ऑफिसर, लाइक डेवलपमेंट ऑफिसर, इनके प्रमोशन और सैलरी कैसे होते हैं? LIC ऑफिसर, ओके। इनके देखिए प्रमोशन, LIC, आई डोंट नो, मतलब पूरी तो जानकारी मुझे नहीं है, बट LIC में भी असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है, ऑफिसर की, मतलब AO जिसको बोलते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकी प्रमोशन एंड सैलरी कैसे होती है? तो देखिए डेवलपमेंट ऑफिसर का आई थिंक 1 या 2 साल का इनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, सैलरी भी थोड़ी अच्छी खासी इसमें मिलती है। बट इसमें जो डेवलपमेंट ऑफिसर होती है, इनको अपने अंडर क्या है, कुछ एजेंट्स वगैरह बनाना है। एजेंट जो होते हैं ना, LIC एजेंट, वो कुछ टारगेट इनका होता है, तो ये यहाँ पे अगर टारगेट कम तो देन जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रहता है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली हो जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। तो वो सैलरी 1-2 साल आई थिंक फिक्स होती है, सैलरी जो अदर ऑफिसर को मिलती है। देन अगर प्रमोशन आपको चाहिए तो एजेंट्स या जो टारगेट्स वगैरह होता है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है। जैसा बैंक ऑफ PO के लिए परमानेंट जॉब होता था, वैसे LIC डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए ये परमानेंट मतलब जॉब नहीं होता है। ओके सर। सैलरी अच्छी वही 50,000 वो उसी के रेंज में सैलरी होंगी। ओके सर। सर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? व्हाट मैडम? सर, हाउ वी कैन प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू? ओके, इंटरव्यू तो देखिए इंटरव्यू में ये मैं सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मार्क्स होते हैं, जो क्लैरिकल एग्जाम के लिए तो कोई इंटरव्यू नहीं होती है, बट जो ऑफिसर लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें इंटरव्यू कंपलसरी है। तो इंटरव्यू में जो हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो पूछे जाते हैं सिंपल। वो भी जो मेंबर्स होते हैं, 3 या 4 एक लेडीज वगैरह होती है, वो मेंबर्स होती है। एंड बिफोर दैट आप आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज वगैरह है, या आप फ्रेंड के साथ भी मतलब प्रैक्टिस किया था।
मेरे समय जब इंटरव्यू थी तब मैंने हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह थे ऑलरेडी जो बैंक में ज्वाइन थे वही हमारे हमने 4-5 यहाँ पे मॉक टेस्ट लिया था। तो सिंपल हम देख के भी ये फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो हमारा जो ड्रेसिंग वगैरह है, अगर कुछ फाइल है तो शेविंग वगैरह मतलब नीट हमको यहाँ पे रहना है एंड कॉन्फिडेंटली यहाँ पे हमको रहना है। चाहे कुछ मतलब क्वेश्चन का हमको आंसर नहीं भी है तो हम यहाँ पे सॉरी सर या सॉरी मैडम आई डोंट नो, ये सिंपल ऐसा बोलना है। जितना मतलब आता है उतना ही ये करना है। अगर कुछ ज्यादा या रॉन्ग अब हमने आंसर दिया है तो वो उसी आंसर पे मतलब थोड़ा खींच लेते हैं। तो सिंपल है, एकदम सिंपल जाना है, सिंपल एंड सोबर। सिंपल ऑफिशियल ड्रेस लगाना है, अगर लेडीज है तो साड़ी या सलवार वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे लगा के जा सकते हैं। तो सिंपल जाना है, कुछ ऐसा ये नहीं है, कॉन्फिडेंटली जाना है बस। यही मैं बोलना चाहूंगा एज पर माई एक्सपीरियंस। Okay. So what is your success mantra? ओके, सक्सेस मंत्रा तो देखिए कोई भी अगर हम एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, नॉट ओनली फॉर बैंकिंग एग्जाम, एसएससी, एमपीएससी और अदर स्टेट लेवल एग्जाम, तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि हमने ये सोचना है कि हमको क्या बनना है। ऑफिसर लेवल पे जाना है, टॉप लेवल पे जाना है, ये पहले हमको यहाँ पे मतलब हमारा जो भी टारगेट है वो हमको यहाँ पे बनाना है टारगेट। देन टारगेट के पीछे भागना है, मतलब क्या एक्शन। तो डेली जो हमारा शेड्यूल है वो हमको यहाँ पे बनाना है। जो भी हमारा स्टडी है एकदम मतलब बनाना है। बाकी की जो अदर दुनियादारी है जैसे फैमिली फ्रेंड्स कुछ फेस्टिवल्स वगैरह है वो हमको यहाँ पे 1-2 साल के लिए तो अलग ही रखना है यहाँ पे। देन यहाँ पे जो ग्रुप भी हम यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि अगर किसी का मैथ या कुछ वीक या प्लस पॉइंट वगैरह 3-4 फ्रेंड्स का अगर ग्रुप है तो वो भी क्या है हम यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि जैसे मुझे मान के चलो कि इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, बट अगर मेरा मैथ अगर वीक है तो थोड़ा मुझे ये क्या है दिक्कत हो सकती है। तो अगर थोड़ा सक्सेस पाना है बैंकिंग या कोई भी एग्जाम में तो क्या यूनिटी जो बोलते हैं ना, यूनिटी 4-5 फ्रेंड्स की, तो यूनिटी भी एक मतलब बेस्ट ऑप्शन है। देन यहाँ पे सेल्फ डेडिकेशन, मॉर्निंग में अगर उठ के हम यहाँ पे पढ़ाई करते तो ये भी एक अच्छा है। मेडिटेशन भी आप करेंगे तो जो दिन है हमारा बहुत अच्छा जाता है। बस यही है, सेल्फ ईमानदार रहना है खुद के साथ। बाकी जो अलग जो फ्रेंड सर्कल वगैरह है वो थोड़ा कुछ दिनों के लिए यहाँ पे हम बंदी रखेंगे तो अच्छा है। देन जो एग्जाम्स वगैरह है फॉलो करना है प्रॉपर, हमारी एक डायरी भी इसमें लिए होना चाहिए कि अपकमिंग एग्जाम कौन से, कैसे प्रिपरेशन करना है। बस यही है कि उसी माहौल में यहाँ पे हमको मतलब रहना है। अगर हमको मुंबई जाना है तो हम बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट या बस से भी जा सकते हैं। तो कैसे जाना है या कैसे जाना है ये हमको यहाँ पे सोचना है। Yes. तो बस यही है कि आप वही फॉलो करो 24, और मतलब माइंड में यही ध्यान रखो कि हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है और हमको जॉब अचीव करना है। डेफिनेटली वो पॉजिटिविटी, वो एटमोस्फेयर हमारे अंदर आ जाएगा। देन वी कैन डू एनीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। कि वही एटमोस्फेयर में रहना है, सेल्फ डेडिकेशन यहाँ पे हमको करना है। जो बाहर की जो दुनिया है वो तो कुछ टाइम के लिए थोड़ा भूल जाना है, बस यही मैं बोलना चाहूंगा। खुद के साथ मतलब यहाँ पे ईमानदार होना चाहिए। Okay, sir. Sir, there is a question from our viewer. Sir, tell us about descriptive English test. ओके, डिस्क्रिप्टिव। देखिए जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम तो ऑफिसर लेवल के लिए होती है, क्लैरिकल के लिए तो कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होती है। तो वहां पे भी लेटर पूछते हैं हमको, ऐसे राइटिंग, देन जो प्रिसाइज वगैरह होते हैं, जो बड़ा ऐसे बड़ा कोई टॉपिक है तो उनको हमको यहाँ पे शॉर्ट में करना है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हियर, हमारी जो टाइपिंग की जो स्पीड वगैरह है ये भी हमको यहाँ पे अच्छे से आना है। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है हमको कंप्यूटर टाइपिंग में करना है, पूरा वहां पे राइटिंग मतलब ये करना है। तो जैसे ऐसे की अगर हम बात करते तो जो करंट सिनारियो क्या है, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल लॉकडाउन चालू है, कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 है, तो इसके बारे में अगर जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें पूछ सकते हैं। देन बैंकिंग की एग्जाम है तो व्हाट इज फाइनेंशियल रिफॉर्म या बैंकिंग सेक्टर्स इन इंडिया, मतलब जो हमारी एग्जाम है उसके रिलेटेड यहाँ पे पूछ बेस्ट है, वो हमको यहाँ पे यूजफुल हो सकता है। देन यहाँ पे हम आर्टिकल्स वगैरह जो आते हैं ना बैंकिंग के वगैरह, ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह है, वो हम यहाँ पे फॉलो करके अचीव कर सकते हैं। देन जो सेकंड है लेटर राइटिंग फॉर बैंकिंग में, जैसे कि किसी को लोन वगैरह लेना है, पर्सनल लोन लेना है, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, तो कैसे अप्लाई वगैरह करना है। सपोज आप कस्टमर हो तो आपको ब्रांच मैनेजर को कैसे अप्लाई करना है, या कोई अदर एग्जाम्स वगैरह है। तो यही मतलब यहाँ पे जैसे कि आपको जॉब चाहिए या जॉब आपको कुछ मतलब ट्रांसफर के लिए, तो ये थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। देन जो प्रिसाइज तो मतलब शॉर्ट करना है, यही मतलब वो पूछे जाते हैं।
तो जो हमारे हम जो बोलते हैं ना 8th-10th में जो ऐसे जो सिलेबस वगैरह था वही ऐसे मतलब सिंपल यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट करना है, तो ये स्पीड भी टाइपिंग की आपको मतलब प्रैक्टिस इसके लिए करना पड़ेगा। Okay, sir. So, anything you want to say to our viewers? ओके ओके, तो Any देखिए जो guidance? भी आप यहाँ पे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, स्टेट लेवल की एग्जाम हो, तो क्या खुद के साथ मतलब यहाँ पे डेडिकेशन से ये करना है, क्योंकि अगर आप एग्जाम अच्छे से देंगे तो जॉब यहाँ पे आपको ही मिलने वाला है, करियर आपका यहाँ पे बनने वाला है, आगे जाके अच्छी जो लाइफस्टाइल है आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो कोई अगर फ्रेंड्स बोलता है कि चलो क्या करना है एग्जाम, आजकल तो गवर्नमेंट जॉब मिलता ही नहीं है, सेटिंग वगैरह होती है सब, तो ये सारे जो मिथ है ये माइंड से निकाल दीजिए। अभी मैं मेरा यहाँ पे एग्जाम देना चाहता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में अकेले में स्टडी करता था, देन हमारे साथ एक दो फ्रेंड्स ज्वाइन हुए, देन ऐसे करते करते आई थिंक 8 to 10 मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। तो सभी को यहाँ पे जॉब लगा, एक दो खाली लेडीज को छोड़ के सभी को यहाँ पे मतलब जॉब यहाँ पे लगा है। तो हमने यही मतलब डिसाइड किया था कि करियर हमको यहाँ पे बनाना है, थोड़ा हमारे फ्रेंड सर्कल वगैरह ये थोड़ा छोड़ के हमको हमारे बारे में यहाँ पे सोचना है। तो वही थोड़ा डिसिप्लिन से यहाँ पे मतलब पढ़ाई करना है, देन बाकी मतलब यहाँ पे तो कोई भी मतलब अलग बात नहीं है। जो भी आप एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हो, बैंक हो, एसएससी या स्टेट लेवल, तो उन्हीं के बारे में मतलब आप सोचो, यहाँ पे डेली शेड्यूल बनाओ, स्टडी करो। कोई अगर वो फील्ड का अगर एक्सपर्ट है, जैसे बैंकिंग के बारे में आप अगर चाहते हो तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। कोई एसएससी का कोई आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई अगर ज्वाइन किया है ऑलरेडी, सीजीएल क्रैक किया है, तो आप उनके कांटेक्ट में रह के ये कर सकते हो, क्योंकि वही आपको बेस्ट यहाँ पे गाइडेंस कर सकता है, क्योंकि वो तो ज्वाइन हुआ है ना एग्जाम्स वगैरह क्रैक करके। तो Yes, जो जो फील्ड का एक्सपर्ट है आप यूट्यूब में भी वीडियोस देख सकते हो। तो बस यही है सिंपल, आप उसी इसमें मतलब लगे रहो, डेफिनेटली वन डे सक्सेस तो आपको मिल ही जाएगा यहाँ पे। thank you so much, sir. Thank you so much for your valuable knowledge, sir. It really helped us. I thank you on behalf of Shashi Dream Foundation. I thank you all my viewers on behalf of Shashi Dream Foundation, sir. गुड थिंग, जैसे कि आपने बैनर में देखा होगा कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है ज्ञान 365, वहां पे भी मैं स्टडी रिलेटेड वीडियो करता हूँ, जो रिक्रूटमेंट रिलेटेड वीडियोस वगैरह है वो भी वहां पे मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं व्यूअर से ये कहना, वहां पे भी आप मुझसे कनेक्ट यहाँ पे रह सकते हो। कुछ भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप डेफिनेटली एनी टाइम यू कैन मैसेज में, टेक्स्ट में आप वहां पे कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल गाइड यू, आई विल हेल्प यू, जो भी सहायता है मैं आपको डेफिनेटली करूंगा। Sure, sir. Sure. ओके मैडम। So thank you so much for your valuable Yeah. knowledge, sir. So Dream you can Foundation follow Harshit. Shashi Dream. Sir, I want to highlight about some Shashi Dream Foundation, sir. Sir, Shashi Dream Foundation is basically an NGO working for providing free education to underprivileged children. Okay. So I want to say to all our viewers also that you can follow us on Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter, and let us know how you feel about today's session. And the feedback link is given in Shashi Dream Foundation's bio. And let us know if you want to discuss any other topic, so you can give us feedback about that. So thank you Yeah, so sure, much, sure. sir. Okay, madam. Thank you. Bye, sir. Have- Good night, sir. Bye, sir. Okay.